Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the third page of your GK book. No, sorry, it is the fourth page of your book. And under this page, we have to be learn the carefully the pyramids of these C and D with the clues. And here we are also again using the prefix or suffix respectively. हम यहाँ पर भी प्रीफिक्स और सफिक्स को ही यूज़ कर रहे हैं. केयरफुली ऑब्जर्व द नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन दैट केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग वर्ड पिरामिड्स एंड राइट द क्लूज फॉर द given words by using a prefix and suffix respectively. One of done for you. Here we are using the prefix is re. The prefix is re. And the word is redo. What is the meaning of redo? To do again. Clue is to do again. Now here the prefix is re and the word is call, recall. What is the meaning of recall? The meaning of recall is call again or to remember. Call again or to remember again. दोबारा से याद करना या दोबारा से कॉल करना. रिकॉल, रिमेंबर. इट इज़ एग्जैक्टली टू रिमेंबर अगेन. उसको दोबारा से याद करना. री राइट. व्हाट डू यू मीन बाय री राइट? राइट मीन्स लिखना. री राइट मीन्स टू राइट अगेन. राइट अगेन. राइट अगेन. ओके. नाउ द थर्ड इज reverse. Here just keep one thing mind that re is the prefix here. यहाँ पर re prefix है and the others are words. Call is a word, write is word, verse is word. Reverse means to go back. Reverse means to go back. हम कहते हैं ना गाड़ी रिवर्स कर लो. Take the car reverse. Okay, तो reverse means go back, वापस. Okay, now come on reshuffle. Shuffling, as you know, what is shuffling? Shuffling means change करना, उसको mix करना दोबारा से. Reshuffle, to be shuffle again. To be shuffle again, दोबारा से shuffling करना. That is called reshuffle. Okay, here this is the prefix is re. Now in the next we are using able, and able is not a prefix here. Able is a suffix, like see able, able, and able. Here the able is suffix that use at the last of the word. Okay, prefix you all know that it is in the starting of the word and suffix is at the last of the word. So here the able is suffix and we have to be write the meaning of these words now. The first one is done. Unable. Unable means not able to do. जो हम नहीं कर सकते. Not able. Not able to do. Next, capable. Capable, जो काम करने की हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है. Not able to do. Unable is not able to और capable is not able to do. जब हम काम कर ही नहीं सकते, कैपेबिलिटी नहीं है. नॉर्मली वी आर सेइंग आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू दिस, कि मुझ में क्षमता नहीं है उस काम को करने की. तो नॉट एबल टू बी डन. कैपेबिलिटी, वन हैज़ नॉट अ कैपेबिलिटी. आप इसका प्रॉपर आंसर लिखोगे दैट वन हैज़ नॉट अ कैपेबिलिटी, कि जब किसी में कैपेबिलिटी नहीं है. Okay, now come on the next. Next is eatable. That can be eaten. Eatable, जो खाया जा रहा है. Eat means खाना. Eatable means that we can be eat. That can be eaten. That can be eaten. Now readable. Readable is that can be read. Read means reading. Read करना. रीड करना किसी भी बुक को, किसी भी पेज को. रीडेबल, दैट कैन बी रेड, जो हम पढ़ सकते हैं. दैट कैन बी रेड.
Red spelling is R-E-A-D. Spelling is same but pronunciation is red. That can be read. Okay. Agreeable. Agree means when we are agree with something or with someone. जब हम किसी से सहमत होते हैं, that is agreeable. Okay. तो that can be agreed with. Agreeable का आंसर क्या आएगा? That can be agreed with. Okay, so this is your prefix and suffix and I have to be tell you the clues for all these. मैंने आपको यहाँ पर clues बताए हैं. Just remember student, previous video we have the clue. Previous जो कल हमने pyramids किए थे, we have the clues and we just find out the word. हमने word फाइंड आउट करना था जिसमें हमने प्रीफिक्स एंड सफिक्स से वर्ड्स फाइंड आउट किए थे. बट इन टुडेज़ वीडियो आई एक्सप्लेन द वर्ड. हमारे पास वर्ड है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्लूज़. हमें क्लूज़ फाइंड आउट करने थे. आई एम रिपीटिंग द क्लूज़ अगेन. रिकॉल मीन्स टू रिमेंबर. रीराइट, राइट अगेन. रिवर्स, टू गो बैक. reshuffle, to shuffle again. Okay, now come on the next. Capable, not one has the capability. not नहीं आएगा यहाँ पे. Capable is one has capability. Eatable, that can be eaten. Readable, that can be read. Agreeable, that can be agreed with. हम जिससे agreed कर रहे हैं, that can be agreed with. Okay, so this is your page number 4 of your GK book. Now come on the next page, that is values are invaluable. Exactly in this page we have to be learn some values with the help of a sentence. हम कुछ values को learn करेंगे जो कि हमारी life में बहुत important हैं. These are some moral values. ठीक है, हमारे पास वर्ड लाइन दी हुई है एंड वी हैव द जम्बल वर्ड ऑफ दैट वैल्यू ऑल्सो. जम्बलिंग वर्ड दी हुई है उस वैल्यू के, हमें उसे रीअरेंज करना है. ओके, हमें क्या करना है? वी हैव टू बी रीअरेंज दीज वैल्यू वर्ड एंड फाइंड आउट द वैल्यू दैट विच वैल्यू इट इज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सिचुएशन. पहले तो सिचुएशन को रीड करेंगे, इससे हमारी हेल्प मिलेगी कि हम कौन सी टाइप ऑफ वैल्यू लर्न कर रहे हैं या कौन सी वैल्यू शो हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस. और फिर हम उस वैल्यू को यहाँ पे अरेंज करेंगे विद दिस जम्बल वर्ड्स. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. यू गिव योर ओल्ड बुक, पेन, पेंसिल एंड स्कूल बैग टू ए पुअर स्टूडेंट लिविंग नियर योर हाउस. अगर आप अपनी ओल्ड बुक्स, पेन, पेंसिल्स अपने किसी पुअर स्टूडेंट को दे रहे हैं जो आपके घर के पास रहता है, तो विच टाइप ऑफ वैल्यूज़ यू आर शोइंग? जस्ट सी हियर. स्टार्ट, ट्राई टू बी मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. एंड आई टेल यू, दिस इज काइंडनेस. दिस इज काइंडनेस. यू आर शोइंग काइंडनेस टुवर्ड्स दैट स्टूडेंट. हम उसे दयालुता को शो कर रहे हैं. ओके, now come on the next. Along with other student of your school, you visit an old people's home and give gift to the old people saying there. आप अपने स्कूल के साथ ओल्ड पीपल्स होम में जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज होम्स में, और उन लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं. स्टेइंग देयर, वहाँ पर उनके साथ थोड़ी देर रह के भी आ रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करके आ रहे हैं. Then which type of quality you are showing here? Which type of value you are showing here? This is empathy. This is empathy. E-M-P-A-T-H-Y. E-M-P-A-T-H-Y. Empathy. Okay? हम उनके लिए empathy को show कर रहे हैं. Now come on the next. स्कूल कंपटीशन, कैन यू डिज़ाइन अ ब्यूटीफुल पोस्टर. आपने स्कूल कंपटीशन में एक ब्यूटीफुल पोस्टर डिज़ाइन किया है से नो टू चाइल्ड लेबर का. ठीक है, तो वो आपकी क्या शो कर रहा है? कौन सी वैल्यू? दैट शो योर क्रिएटिविटी. दैट शो योर क्रिएटिविटी. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट. देयर इज़ अ फाइट बिटवीन टू और ऑफ योर फ्रेंड्स. आपके दो फ्रेंड्स के बीच में क्या हो गई? लड़ाई.
एंड यू पैसिफाई दैम द इनकरेज दैम टू बी फ्रेंडली, और आप उन्हें फ्रेंड बनने के लिए पैसिफाई कर रहे हो, उनको मना रहे हो, उनको समझा रहे हो. तो यू आर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन दैम, एंड दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो. आप कौन सी क्वालिटी को शो कर रहे हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी को. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, योर फ्रेंड आस्क यू टू सी हिज आंसर्स. आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि आप आंसर्स देख लो, उसको कॉपी करने के लिए, इट मीन्स चीटिंग करने के लिए वो कह रहा है आपको, बट यू रिफ्यूज़, बट आप मना कर देते हैं. तो आप कौन सी क्वालिटी शो कर रहे हो अपने अंदर? दिस शोज योर ऑनेस्टी. दिस शोज योर ऑनेस्टी. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट. यू अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट डेकोरेट योर क्लास डिस्प्ले बोर्ड. आप क्लास डिस्प्ले बोर्ड को दूसरे फ्रेंड्स के साथ डेकोरेट कर रहे हो. हियर यू आर शोइंग, आप दूसरों के साथ मिलजुल के वर्क कर रहे हो ना, तो क्या शो कर रहे हो? कॉपरेशन. यू आर शोइंग कॉपरेशन. जब हम दूसरों के साथ मिलकर फ्रेंडली बिहेवियर से वर्क करते हैं तो वो हमारी कॉपरेशन को शो करता है. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. योर टीचर इज़ एब्सेंट. आपके टीचर एब्सेंट है, बट यू मैनेज द क्लास, और आप क्लास को मैनेज कर रहे हो, बच्चों को फ्रेंड अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने के लिए और लर्निंग के लिए मोटिवेट कर रहे हैं. देन व्हाट यू आर क्रिएटिंग इनटू द क्लास? यू आर क्रिएटिंग डिसिप्लिन. You are creating discipline, and you are showing the value this discipline. Okay, now come on the next. You led a rally around the school area to spread awareness about planting trees and caring of the environment. आप अपने स्कूल के आसपास के लोगों में ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए, प्लांटिंग ट्रीज़ की अवेयरनेस करने चाह रहे हैं और इन्वायरमेंट अच्छा करना चाह रहे हैं. तो आप कौन सी क्वालिटी को शो कर रहे हैं? यू आर शोइंग द लीडरशिप क्वालिटी. विच क्वालिटी? लीडरशिप. नेक्स्ट. अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स यू कैन क्लीन अप योर क्लासरूम. आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम, कॉरिडोर, स्कूल लाइब्रेरी को क्लीन कर रहे हैं. देन यू आर शोइंग क्लीनीनेस. आप क्या शो कर रहे हो? क्लीनीनेस. साफ सुथरा बिहेवियर, साफ सुथरा एटमोसफियर. नाउ कम द नेक्स्ट. यू मेक अ टाइम टेबल. आपने एक टाइम टेबल बनाया, एंड डिवोट रेगुलर टाइम टू स्टडी, एंड ईच एवरी सब्जेक्ट में टाइम को डिवोट कर रहे हो. देन यू आर डूइंग द टाइम मैनेजमेंट. आप क्या कर रहे हो? टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो अच्छे तरीके से. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.